Students, now we will be studying the third lesson of your Unit 2 of your 10th Standard English textbook. It's a chapter named Connecting the Dots, and it is like kind of an autobiography of Steve Jobs. Steve Jobs कौन था जिसने एप्पल फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ एप्पल, co-founder. Steve Jobs was an American entrepreneur, business magnate, inventor, and industrial designer. He was the chairman, chief executive officer, and co-founder of Apple Incorporation. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 1970s and 1980s. वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर था. एंटरप्रेन्योर का मतलब जो कुछ नया डिस्कवर करता है. बिजनेस मैग्नेट, इन्वेंटर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, चेयरमैन, सीईओ और को फाउंडर एप्पल का, और उसे माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन के 1970s और 80s का वन ऑफ द पायनियर्स मानते हैं. टुडे आई वांट टू टेल यू 3 stories फ्रॉम माय लाइफ. दैट्स इट, जस्ट 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. Looking back, it was one of the best decisions I ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 3 कहानियाँ बताने जा रहा हूँ. बस 3 कहानियाँ. पहली कहानी है डॉट्स जोड़ने की. मैंने ड्रॉप्ड आउट ऑफ डिसकंटिन्यूड लेफ्ट. मैंने रीड कॉलेज छोड़ दिया था पहले 6 महीनों के बाद, पर मैं ड्रॉप इन यानी विजिटर, ड्रॉप इन जैसे रहा अगले 18 महीने तक. इसके पहले जब मैंने सही में छोड़ा, पीछे देखते हुए वो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था. I could stop taking the required classes that didn't interest me. मैं वो क्लासेस छोड़ सकता था जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और वो कर सकता था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for 5-cent deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. मेरे पास डॉर्म यानी डॉर्मेटरी, कॉलेज में जहाँ पे रहते हैं, मेरे पास एक खुद का कमरा नहीं था, तो मैं दोस्तों के कमरे के ज़मीन पे सोता था. मैं कोक बॉटल्स वापस करता था जिसके लिए मुझे 5 सेंट डिपॉजिट मिलते थे. 5 सेंट मीन्स अ कॉइन वर्थ 100th ऑफ द US डॉलर, यानी $1 का 100th. 5 सेंट डिपॉजिट मिलते थे जिससे मैं खाना खरीदता था, और मैं 7 मील रोज़ चलता था शहर के अक्रॉस, और हर संडे नाइट को मैं 7 मील दूर जाता था एक पेट भर के एक अच्छे खाने के लिए हरे कृष्णा मंदिर में. मुझे वो बहुत पसंद था. और much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Here is one example. Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. Reed College दुनिया की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन देता था पूरे देश में. क्योंकि मुझे कैलीग्राफी क्लास लेनी थी, मैंने सेरिफ और नॉन सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, और ये सीखा कि क्या ग्रेट टाइपोग्राफी, द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, यानी ये जैसे प्रिंट हुआ है, जो महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है. 10 साल बाद when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that college
on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts. 10 साल बाद जब हम हमारा पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, ये सब मुझे वापस याद आया और हमने ये सब मैक में डिज़ाइन कर दिया। अगर मैं उस कोर्स कॉलेज में वो नहीं करता तो आज मैक में इतने सारे टाइप फेसेस और इवन प्रोपोर्शनल स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते। एंड सिंस विंडोज़ जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर would have them. Of course, it was possible to connect the dots looking forward. और जब विंडोज़ ने मैक को कॉपी किया, ये काफ़ी लाइकली है कि नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। ऑफ कोर्स हाँ, ये इम्पॉसिबल था कनेक्टिंग द डॉट्स, एसोसिएट वन आइडिया जो प्रीवियस टू अनदर नेक्स्ट टू फाइंड क्रिएट अ न्यू पिक्चर, यानी पुराने आइडिया को आगे के आइडिया से जोड़ना। You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in some things, your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. तुम आगे देखकर डॉट्स कनेक्ट जोड़ नहीं सकते, तुम उन्हें सिर्फ पीछे देखकर जोड़ सकते हो। तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ता है कि तुम्हारे ज़िंदगी के जो डॉट्स हैं वो कैसे भी कनेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे फ्यूचर में। तुम्हें कुछ चीज़ों में भरोसा करना पड़ता है। तुम्हारा गट मीन्स करेज एंड डिटर्मिनेशन, यानी साहस और दृढ़ता, डेस्टिनी, ज़िंदगी, कर्मा, वॉटएवर। इस अप्रोच ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया और मेरे ज़िंदगी में सारा डिफरेंस किया है। My second story is about love and loss. I found what I loved to do early in life was Steve Wozniak, and I started Apple when I was 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company. $2 billion company, and then I got fired. It was devastating. दूसरी कहानी प्यार और लॉस के बारे में है। मुझे क्या अच्छा लगता था कि क्या चीज़ करने से प्यार था, वो मुझे ज़िंदगी में जल्दी मिल गया। उसका पूरा नाम था स्टीव वॉज़नियाक, उसको प्यार से वो वॉज बोलता था, और मैंने एप्पल शुरू किया जब मैं सिर्फ 20 साल का था। 10 साल में एप्पल सिर्फ हम दोनों एक गराज में, वहाँ से एक $2 बिलियन यानी आज के डेट में करीबन 16,000 करोड़ उतने की कंपनी बन गया था। फिर गॉट फायर्ड, फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया। इट वॉज डेवेस्टेटिंग मीन्स कॉजिंग सिवियर शॉक, डिस्ट्रेस एंड ग्रीफ। बट समथिंग स्लोली बिगैन टू dawn on me. I still loved what I did and so I decided to start over. पर धीरे धीरे कुछ चीज़ began to dawn on me, began to become clear too. I still loved what I did and so I decided to start over. मुझे जो मैं करता था उससे प्यार था और फिर मैंने वापस शुरुआत करने का फैसला लिया। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. उस heaviness की, मुझे सक्सेसफुल बनने की, उसे रिप्लेस कर दिया था उस लाइटनेस ने, यानी उस हल्की चीज़ ने जिसने मुझे वापस एक बिगनर बना दिया था। उसने मुझे फ्रीड यानी आज़ाद कर दिया और मेरे दिमाग के सबसे क्रिएटिव पीरियड में डाल दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी, अनदर कंपनी नेम पिक्सार, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. I returned to Apple and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Laureen and I have a wonderful family together. अगले 5 सालों तक मैंने एक कंपनी जिसका नाम था नेक्स्ट चालू की,
एक और कंपनी जिसका नाम था पिक्सार, और मुझे प्यार हुआ एक बहुत ही अमेजिंग वुमन से, यानी औरत से, जो मेरी पत्नी बनने वाली थी। पिक्सार अभी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन यानी कार्टून वाला जो होता है मूवीज़, वो स्टूडियो है। फिर एप्पल बॉट नेक्स्ट। मैं वापस आया एप्पल में, और जो टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, डेवलप की थी नेक्स्ट में, वो आज एप्पल के करंट रेनेसांस मीन्स रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म या रिवाइवल, एप्पल के रेनेसांस का दिल है। फिर लॉरीन और मेरी आज हमारी एक वंडरफुल फैमिली, बहुत सुंदर परिवार है हमारा। Sometimes life hits you in the head with a brick. Hits you in the head with a brick यानी give a great shock suddenly. कभी कभार जिंदगी तुम्हें सर पे एक ईंट से मारती है, यानी एक बहुत बड़ा झटका देती है। डोंट लूज फेथ, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। इफ यू हैवेंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। हिम्मत मत हारो। दुनिया में महान काम करने का तरीका यही है कि तुम वो चीज़ करो जिससे तुम प्यार कर सकते हो। अगर तुम्हें ये अभी तक नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, डोंट सेटल। माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। मेरी तीसरी कहानी है मेरे मृत्यु की। 1 साल पहले मुझे कैंसर से डायग्नोज किया था। मैं डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। 1 साल पहले मुझे कैंसर से डायग्नोज किया था। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ एंड गेट, और अपने अफेयर्स सही ऑर्डर में लाओ, यानी जो डॉक्टर की सीक्रेट लैंग्वेज है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now. मैं उस डायग्नोसिस के साथ सारा दिन रहा। उस शाम मैंने एक बायोप्सी कराई और एक बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर निकला जो ठीक हो सकता है सर्जरी के साथ। मेरी सर्जरी हुई और मैं अभी ठीक हूँ। This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. ये सबसे पास था मैं मृत्यु को फेस करने के, और मैं आशा करता हूँ कि ये सबसे पास है कि मैं उसके पास गया था कुछ और सालों तक। मैं उसके थ्रू जिया हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा टाइम इस धरती पर लिमिटेड है, तो ये किसी और की ज़िंदगी जीने में वेस्ट मत करो। Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your inner voice. Dogma means belief or a set of beliefs held by a group of organization which others are expected to accept without argument. यानी कुछ बिलीफ होते हैं जो एक कम्युनिटी करती है, जिनके उसूलों के मुताबिक सबको जीना पड़ता है। दूसरों के डॉगमा के अकॉर्डिंग मत रहो, विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। दूसरे क्या सोचेंगे तुम्हारे रिजल्ट्स के बारे में, उसके बारे में सोच के मत रहो। दूसरों का शोर, दूसरों के ओपिनियंस का शोर ड्राउन आउट, यानी खाली अपने इनर वॉइस को खाली मत करने दो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दिल और इंट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग इंस्टिंक्टिवली ट्यूशन को फॉलो करो। वो ऑलरेडी जानते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalogue. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." जब मैं छोटा था
एक बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन था जिसका नाम था दी होल अर्थ कैटलॉग। उसके फाइनल इशू में पीछे के कवर पे उन्होंने एक फ़ोटो डाला था एक जल्दी सुबह के कंट्री रोड का। उसके नीचे ये शब्द थे, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो फूलिश रहो। It was their farewell message as they signed off. I have always wished that for myself, and now as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने ख़त्म किया। मैंने हमेशा खुद के लिए यही चाहा है, और अब जैसे आप लोग ग्रेजुएट होंगे और नया शुरू करेंगे, मैं आपके लिए यही चाहता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश।